Yes, so good morning everyone. Today we are going to end this chapter with a video, है ना? आज हम ये चैप्टर फिनिश करेंगे एक वीडियो देख के, ठीक है? एक पूरा शॉर्ट समरी है इस चैप्टर की, जो हम वीडियो के फॉर्म में है, जो इसको देखेंगे. चलिए, so let's start. Climatic zones. Climate refers to the weather conditions of a place in general or over a long period of time. Certain factors such as distance from the sea, amount of moisture in the air, winds, height above the sea level, and distance from the equator affect the climate of a place. Based on the distance from the equator and the amount of heat it receives, the Earth is divided into three climatic zones: the Torrid Zone, the Temperate Zone, and the Frigid Zone. Today, let us learn a little more about them. The Torrid Zone, also known as the Tropical Zone or the Tropics, extends from the Tropic of Cancer to the Tropic of Capricorn. The equator lies in the middle of this region and divides it into the North Torrid Zone and the South Torrid Zone. The North Torrid Zone lies between the equator and the Tropic of Cancer. The South Torrid Zone lies between the equator and the Tropic of Capricorn. It receives the horizontal rays of the sun and hence remains hot. This heat helps in evaporation of water from the water bodies, which results in rain. Thus, the region is hot and humid throughout the year. It is home to tropical rainforests, grasslands, and hot deserts. The Sahara Desert, the Thar Desert, and the Atacama Desert are some of the deserts found in this zone. Singapore, Kuala Lumpur, Nairobi, Quito are some of the important cities in this zone. The temperate zone is located between the tropical and the frigid zones. There are two temperate zones, the North Temperate Zone and the South Temperate Zone. The North Temperate Zone lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. The South Temperate Zone lies between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle. The sun does not shine directly over this zone. Thus, this region receives slanting rays of the sun and experiences moderate climate. It is home to many deciduous forests and temperate grasslands. Tokyo, New York, and London are some of the most populous cities found in this zone. The frigid zone, also known as the polar regions, is located between the poles and the temperate zones. There are two frigid zones, the North Frigid Zone and the South Frigid Zone. The North Frigid Zone lies between the North Pole and the Arctic Circle. The South Frigid Zone lies between the South Pole and the Antarctic Circle. This zone receives very little warmth from the sun's slanting rays and hence remains cold and dry throughout the year. It is home to vegetation such as grasses, lichens, and mosses. Anchorage, Reykjavik, Nuuk, and Verkhoyansk are some of the cities found in this zone. Okay, so in this video what we have seen कि हमारा जो temperate zone है that is divided into three parts. उससे पहले what we have studied
कि सब देयर वर सम फैक्टर्स जो हमारे क्लाइमेट को जो है हमारी प्लेस को या क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस को जो है इफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स थे? दोज वर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर, की जो इक्वेटर से है हमारा जो डिस्टेंस है या जो प्लेस है वो कितनी दूरी पे है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट वाज द एल्टीट्यूड ऑफ अ प्लेस, कि वो जितना ज्यादा हाइट पे होगा उतना ही ज्यादा वहां पे क्या होगा, क्लाइमेट कोल्डर होगा। देन नेक्स्ट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, कि विंड के भी डायरेक्शन से हमारा जो क्लाइमेट है वो इफेक्ट करता है। देन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल आल्सो इफेक्ट द क्लाइमेट। देन डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द सी, जैसे सी की दूर सी के अगर आसपास कोई प्लेस है तो उसका क्लाइमेट कैसा होगा, मॉडरेट होगा, ठीक है। और अगर दूर होगा तो एक्सट्रीम क्लाइमेट होगा। ओके, सो दीज वर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट। उसके बाद हमने अभी इस वीडियो में देखा दैट द अर्थ, हमारा जो अर्थ है, ठीक है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बिकॉज ऑफ द सनलाइट, कि जितना ज्यादा उस पर सनलाइट पड़ती है उसको उस अकॉर्डिंग जो है डिवाइड करा गया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टॉरिड जोन, सो दिस इज द टॉरिड जोन, जो जोन नियर द इक्वेटर है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। अब इस पे क्या है, सन की जो रेज है या सनलाइट है वो डायरेक्टली फॉल होती है, तो दैट्स व्हाई यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या है, हॉट एंड ड्राई है, ठीक है। देन उसका आपको लोकेशन बताना है कि जो आपका टॉरिड जोन है वो कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने 4 टाइप्स ऑफ लैटिट्यूड्स लर्न किए थे, है ना, तो वो 4 टाइप ऑफ लैटिट्यूड्स आप देखो अब यहाँ काम आ रहे हैं। तो जब अब ये 4 टाइप ऑफ लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग ही हमें उसका लोकेशन या उसकी प्लेस बताई गई है कि टॉरिड जोन इज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये लैटिट्यूड्स के नेम थे। तो हमारा जो टॉरिड जोन है वो कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ तक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो पोर्शन है वो पूरा दैट इज द टॉरिड जोन। अब इसमें क्या है, इक्वेटर भी आ रही है, ठीक है। सो इट लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यही पढ़ा था हमने, ठीक है। आप देखो पीछे पेज टर्न आउट करो, पेज नंबर 30, ओपन योर पेज नंबर 30। आप देखो इसमें सब मेंशन है कि टॉरिड जोन लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर, यानी कि इक्वेटर के दोनों तरफ है, दैट इज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अगर वो प्लेस जो है नॉर्थ साइड में है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो है, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ टॉरिड जोन, ठीक है, बिकॉज ये नॉर्थ साइड में है ना। हमने पढ़ा था 2 पार्ट्स में हमारा अर्थ जो है डिवाइड होता है, तो दैट इज द नॉर्थ वन एंड दिस इज द साउथ वन। तो अगर नॉर्थ साइड में तो नॉर्थ टॉरिड जोन होगा, और अगर साउथ में है तो साउथ टॉरिड जोन, ठीक है। देन द वर्ड टॉरिड मीन्स, अब हर जोन को जो नेम दिया गया है मैंने बताया कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कि अगर उसको टॉरिड नेम दिया है तो उसका क्या मतलब है। तो टॉरिड मीन्स वेरी हॉट एंड ड्राई, यानी कि इस ये यहाँ पे जितने भी प्लेसेस आती हैं, यानी कि जितनी भी सिटीज कंट्रीज वगैरह आती हैं, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट ह्यूमिड एंड वेट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज यस एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि टॉरिड जोन के 2 नेम्स होते हैं, दैट इज द इक्वेटोरियल एंड द ट्रॉपिकल जोन। ओके, नाउ नेक्स्ट जोन इज टेम्परेट जोन। अब ये टेम्परेट जोन आपका कहाँ लाई करता है, यानी कि कहाँ आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, देन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अंटार्कटिक आर्टिक सर्कल में जाता है, ये आप देखो, ये हमारी आर्टिक सर्कल वाली लैटिट्यूड हमने पढ़ी थी। देन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल, यानी कि इसके बीच का जो पोर्शन है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्टिक सर्कल के बीच तक का जो पोर्शन है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं। अगर वो नॉर्थ साइड में है तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, और अगर साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे। अब टेम्परेट जोन मींस जहाँ पे ना ज्यादा आपको एक्सट्रीम क्लाइमेट मिलेगा, मतलब ठीक है, थोड़ा सा ठंडा भी होगा, मतलब एज कंपेयर टू टॉरिड जोन इसमें जो क्लाइमेट होगा वो थोड़ा सा मॉडरेट टाइप आप मानो वो होगा, ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी, ठीक है। टॉरिड जोन में तो क्या था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, यहाँ पे जो है टेम्परेट जोन में वो मॉडरेट क्लाइमेट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो सनलाइट की जो रेज है वो स्लांटिंग फॉर्म में जा रही है, ठीक है, पूरी प्रॉपर स्ट्रेट नहीं जा रही है जैसे वो टॉरिड जोन में जा रही है। ओके, देन नेक्स्ट इज द लास्ट जोन दैट इज द फ्रिजिड जोन। अब फ्रिजिड जोन कहाँ है, हमारा आर्टिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, इसके बीच में जो जोन आता है दैट इज दी फ्रिजिड जोन। वैसे ही अंटार्कटिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक के बीच का जो जोन होता है दैट इज दी साउथ फ्रिजिड जोन। नॉर्थ में है तो नॉर्थ फ्रिजिड जोन और साउथ में है तो
साउथ फ्रिजिड जोन। अब बिकॉज यहाँ पे जो सनलाइट की रेज है वो नहीं पहुंच पाती और एकदम क्या आप बोलो बहुत ही कम पहुंच पाती है, बहुत ही ज्यादा कम। ठीक है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट होता है यानी कि वो कैसा होता है, एकदम यहाँ पे जो रीजन आते हैं, यहाँ पे जो प्लेसेस आती हैं वो एकदम कोल्ड प्लेसेस होती है, यानी कि उनका जो क्लाइमेट रहता है वो क्या होता है, कोल्ड होता है, जिसको हम पोलर भी बोल सकते हैं, पोलर जोन, जहाँ पे सिर्फ क्या होता है, आइस और स्नो से कवर्ड रहता है ना। So these were the three zones that were divided according to their temperature, है ना, according to the intensity of sunlight, कि जितना ज्यादा सनलाइट पहुंच रही है उसके अकॉर्डिंग जो है इन थ्री जोन्स को डिवाइड कर रखा है। तो अब ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, टॉरेट जोन की क्या कहाँ पे उसका लोकेशन है या वो किन दो लाइंस के बीच में आती है। देन अगर साउथ में है तो साउथ टॉरेट जोन, नॉर्थ में है तो नॉर्थ टॉरेट जोन। फिर देन टॉरेट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सेम विद दी टेम्परेट जोन, ठीक है, कि टेम्परेट जोन कहाँ लाई करता है आपका। देन नॉर्थ, अगर नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन। देन यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, माइल्ड होता है, यानी कि टॉरेट के कंपैरिजन में थोड़ा सा मॉडरेट या कम होता है। अगर यहाँ पे ज्यादा गर्मी है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है, ये थोड़ा सा कूलर रहता है क्लाइमेट एज कम्पेयर टू टॉरेट, यानी कि टॉरेट से तो बेटर है या बीच का आप मान लो, ठीक है। देन फ्रिजिड जोन में क्या होता है, कहाँ पे लाई करता है, आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल, ठीक है, तो वो नॉर्थ फ्रिजिड जोन हो गया। सदर्न हेमिस्फीयर में वो अंटार्कटिक सर्कल से कहाँ लाई करता है, साउथ पोल तक, तो वो साउथ फ्रिजिड जोन हो गया। देन द टेम्परेचर ऑफ दिस जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड, यानी कि विच इज मोस्टली कवर्ड विद आइस और स्नो, यहाँ पे बहुत ज्यादा आइस होती है या स्नो होता है। So that's it. So we have completed our chapter 4. हमारा chapter 4 जो है यही complete होता है। Okay?